सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। Now we will simplify left hand side and right hand side of this equality, and then we will find out whether this statement is true or false. Let us start with part 1. This is 10 multiplied by 10 raised to the power 11. हम left hand side से start करेंगे. So LHS equals this is 10 multiplied by 10 raised to the power 11. First में exponent 1 है. So law of exponent use करेंगे. Basis same है. So it will be 10. Powers will get added. This equals 10 raised to the power 12. Now we will compare this with right hand side. On right hand side हमारे पास है 100 raised to the power 11. Now we will compare left hand side and right hand side. Left hand side में हमारे पास है 10 raised to the power 12 and this is not equal to 100 raised to the power 11. So this statement is false. I hope this is clear. Second part करते हैं. 2 raised to the power 3 is greater than 5 raised to the power 2. So दोनों को simplify करेंगे. 2 raised to the power 3 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 3 times 2 multiply होगा. इसी तरीके से right hand side पे 5 2 times multiply होगा. So 2 2 जा 4 2 जा 8. So यहाँ पर 8 आएगा और इधर आएगा 25. Now clearly you can see this statement 8 greater than 25. This is false because 8 is less than 25. So this statement is also false. I hope this is clear. Next करते हैं part 3. यहाँ पर भी equality के दोनों side हैं. हम left hand side से start करेंगे. Left hand side equals 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 2. 2 raised to the power 3 means इसको 3 times multiply करना है. Then we will multiply 3 2 times. So this equals 8 multiplied by 9 and 8 multiplied by 9 is 72. So left side में है 72 and अब right hand side को simplify करेंगे. On right hand side हमारे पास है 6 raised to the power 5. 6 raised to the power 5 means इसको हमें 5 times multiply करना है. This is 2 times, 3 times, then 4 times, then 5 times. 6 6 जा 36 and 36 6 जा 216. So यहाँ पर 216 आ गया. Multiplied by 36. इसको हम multiply कर लेंगे and this equals 7776. Clearly you can see that left hand side is 72 and right hand side is 7776. So LHS is not equal to RHS and this statement is also false. I hope this part is also clear. Next part करते हैं part 4. पार्ट 4 में बच्चों देखिए यहाँ पर 3 रेज टू दी पावर 0 है. एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 इज 1. सो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है. इसी तरह से 1000 रेज टू दी पावर 0 ये भी 1 आ रहा है. हियर वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दोनों साइड्स बैलेंस्ड हैं. दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. So बच्चों इसको simplify करना है. सबसे पहले हम 108 के factors बनाएंगे. So यहाँ पर बना लेते हैं. इसको simplify करेंगे. यहाँ पर 108 लिख लेते हैं. 108 2 की टेबल में आता है. 2 से डिवाइड करेंगे. This equals 54. अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा. This equals 27. अगेन 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा बट 3 से डिवाइड होगा. सो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 9 जा 27. यहाँ पर 9 आ जाएगा. देन 3. दिस विल गो 3 टाइम्स. देन 3 1 टाइम. सो फैक्टर्स ऑफ 108 आर. यहाँ पर हम लिखेंगे 108 मल्टीप्लाइड बाई 192. दिस इक्वल्स दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. ये लिख लेंगे. इसी तरह से ये 3 टाइम्स है. सो वो भी लिख लेंगे 1 2 3. अब यहाँ पे 192 के फैक्टर्स लिखने हैं. लिखते हैं 192 के फैक्टर्स बनाएंगे. 192 लिख लेते हैं.
ये भी 2 से डिविजिबल है, सो 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 96. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 48. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 24. अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा. अगेन 2 से, हियर 6. दोबारा से 2 से, यहाँ पे 3. देन इट इज़ डिविजिबल बाई 3. 3 से डिवाइड करेंगे 1. सो 192 के ये फैक्टर्स बन जाएंगे. दिस इज 3 टाइम्स 2, अगेन 3, 6 एंड 3. इसको यहाँ पे आगे लिखेंगे. दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. देर आर 6 2s. सो दिस इज 4th one, 5th, 6th एंड एक 3 भी है, सो मल्टीप्लाइड बाई 3. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. सबसे पहले हम 2s काउंट करेंगे. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 की एक्सपोनेंट्स काउंट करेंगे. दिस इज 1 2 एंड 3. सो 3 रेज टू द पावर 3. बच्चों 3 रेज टू द पावर 4 है. यहाँ पर 3 3s हैं हमारे पास, 3 यहाँ पे हो गए और एक ये है. सो दिस इज नॉट 3, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पे एक 3 और है, सो मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख देते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट पार्ट करते हैं 270. अब हमें 270 के फैक्टर्स बनाने हैं. सो बना लेते हैं 270. यहाँ पर 270 लिखेंगे. ये भी 2 से डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1 3 5. अगेन ये अब 3 से डिवाइड होगा, सो 3 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 4 5 45. अगेन 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा. फिर ये 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा. अगेन ये 5 से डिवाइड होगा 1. सो 270 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. यहाँ पर 3 बार है, सो 3 बार 3 लिखेंगे, एक बार 5 है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूज कर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 3 729 मल्टीप्लाइड बाई 64. अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे. सबसे पहले 729 के बनाते हैं. यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं. 729 यहाँ पर लिखेंगे. ये 3 से डिविजिबल है, सो 3 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 2 4 3. अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 81. अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा 27. अगेन 3 से डिवाइड होगा 9. अगेन 3 से डिवाइड होगा 3. अगेन 3 से डिवाइड होगा 3 एंड 1. सो 729 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स, यहाँ पर 3 कितनी बार है, दिस इज 3 एंड 3 6 टाइम्स. तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, देन 6 टाइम्स. 6 टाइम्स हमने यहाँ पर 3 लिख लिया. अब 64 के फैक्टर्स बनाएंगे. 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं. दिस इज 64. 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा. अगेन 2 से डिवाइड होगा, दिस विल बी 16. देन अगेन 2 से डिवाइड होगा, दिस इज 8. अगेन 2 से, दिस इज 4. अगेन 2 से, देन 2. अगेन 2 से एंड 1. सो 64 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे. हाउ मेनी टाइम्स 2 इज देयर, दिस इज 6 टाइम्स. सो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर 6 टाइम्स 2 लिख देंगे, दीज आर 2 टाइम्स, देन 3 4 5 एंड 6. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. दैट एक्सप्रेशन इक्वल्स 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 6. आई होप ये पार्ट भी समझ में आया है. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 4 768. अब हमें 768 के फैक्टर्स बनाने हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. सो इधर बनाएंगे 768, यहाँ पर लिख लेंगे, दिस इज 768. 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 384. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 192. अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी 96. अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 48. अगेन 2 से 24. अगेन 2 से, दिस विल बी 12. अगेन 2 से 6. अगेन 2 से 3. नाउ 3 से डिवाइड होगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो इसके मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख लेते हैं. दीज आर 3 2s, 3 3 6, देन 2 8 टाइम्स. सो दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. 8 टाइम्स लिखेंगे. 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स,
7 टाइम्स 8 टाइम्स हमने 2 लिखा और 8 3 है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बच्चों ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 2, इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देन वी हैव 7 रेज टू द पावर 3, ये लिखेंगे। अभी डिनोमिनेटर में 8 रेज टू द पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 3 और इसका एक्सपोनेंट हमें दिया गया है, दिस इज 3, सो यहाँ पर 3 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर में 5 2 ज़ा 10, सो दिस इज 2 पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू द पावर 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। इसी तरह से इन दोनों में भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। सो दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 9, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से 7 रेज टू द पावर इट विल बी 3 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू द पावर 2 और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू द पावर 2। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2। 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 25 एंड 10 ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में नहीं है, सो सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। दिस इक्वल्स 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, देन वी हैव दिस 5 स्क्वायर, सो ये भी लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर 8। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 10 क्यूब, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड इसका क्यूब मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर 4। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। दिस इक्वल्स 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 2, पावर्स ऐड हो गई। नाउ वी हैव t रेज टू द पावर 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इक्वल्स 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर 8। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर 4। अब इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, इसमें और इसमें। आइए इसको करते हैं। दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स 5 रेज टू द पावर, दिस विल बी 4 माइनस 3, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर, यहाँ पर भी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस विल बी 8 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इक्वल्स 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 3, दिस विल बी 5 ओनली एंड मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर 8 माइनस 4 करेंगे, दिस विल बी 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 3, दिस कैन बी रिटन एज 8। सो वी हैव 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू द पावर 4। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3। इसको भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। जो नंबर्स प्राइम फैक्टर फॉर्म में नहीं है उनको प्राइम फैक्टर फॉर्म में करेंगे। 10 रेज टू द पावर 5, 25 एंड 6 रेज टू द पावर 5, ये नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 और इसका एक्सपोनेंट है 5। 25 को हम लिखेंगे 5 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसका एक्सपोनेंट है 5। सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इक्वल्स 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 5।
यहाँ पर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पेयर कर लेते हैं सेम लाइक जो बेसिस हैं उनके, ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होंगे। 5 जो हैं ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होंगे और फिर हम 3 रेज़ टू द पावर 5 एंड 3 रेज़ टू द पावर 5 इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। आइए सबसे पहले 3 रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 रेज़ टू द पावर 5 एंड 5 रेज़ टू द पावर 2। सो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेसिस सेम है। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है 3 रेज़ टू द पावर 5 एंड 5 रेज़ टू द पावर 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हो गया 3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 7 और डिनोमिनेटर में है 3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 7। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाले दोनों क्योंकि बेसिस सेम है 3, इसी तरीके से ये वाले दोनों इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आइए करते हैं। दिस इक्वल्स 3 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो गए, हमारे पास है 2 रेज़ टू द पावर 0 एंड दिस इज 5 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 7। 3 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 0। Any number raised to the power 0 is 1, so this equals 1 multiplied by 1 multiplied by 1. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, this will be 1. I hope this part is also clear. So बच्चों इस एक्सरसाइज में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू ऑल।